weren't politician before I joined Mrs. India. I had a I had a problem with the camera. I was very camera shy. I couldn't speak at all. But Vijay told me that you come for my practice, see how you will be able to speak. And really, within 2-3 days, all my shyness, everything just vanished. And today I'm here in front of you all. इट्स नॉट अ 2-3 डेजचा चमत्कार. पूर्ण जो प्रोसेस होता महिन्याचा त्यांनी केला, पण आठवडा अगोदर या बॅकआउट होत होत्या. का मला भीती वाटते मी स्टेजवर बोलू शकणार की नाही, या सगळ्या गोष्टी होत्या. कॉन्फिडन्स नव्हता फक्त त्यांना, बाकी सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण त्या कॉन्फिडन्स नसताना त्यांना नव्हता. त्यामुळे ते त्यांची भीती होती त्यांना का मला मी घेऊ शकणार बॅकआउट. तर त्यांना मी ॲश्युरिटी दिली का तुम्ही हे करू शकता, असं नाही का नाही करू शकत. पण तेव्हा त्यांना कुठेतरी कॉन्फिडन्स आणि फिलिंग मी जी बाई जी लेडी जी मिसेस आज आहे ती बॅकआउट होणार ती बिकम द मिसेस इंडिया. दॅट्स अ टोटली डिफरंट थिंग. Today really I'm very confident. I've been in fact taking seminars now. I've been teaching the cancer patients what cancer is and how they can get out of it. The AIDS children. We've been doing lots of work in social service, and I can only say is that all the ladies over there, please come forward, go out of your way, try to join this Mrs. India. You will really get confident and go ahead in life. Thank you. By the way, she is a cancer survivor. It's not a thing, it's a very big heart and big courage you require to come on the stage and perform. And she is the winner, and she never took that advantage of cancer survivor as a sympathy factor. She won on as a normal contestant. Okay, it's my turn now. I am Seerat Kaparia. I'm an actor and an anchor. सबसे पहले I just want to thank you sir for roping me in, and almost हम 2.5 साल से trying to do this event, but unfortunately pandemic हुआ, हम नहीं कर पाए. And इस event की मुझे personally ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत चीज़ ये है, and she is a live example of that, कि बहुत से लोग होते हैं जो actor बनना चाहते हैं, model बनना चाहते हैं, but they are not given the kind of platform they need. और कभी platform मिल भी जाता है, they are so shy that they never initiate. And it's written there. The slogan is, you don't have to be a model, to participate here. So that's how we're trying to connect with all of you. यहाँ पे एज ग्रुप नहीं है, and एक्सपीरियंस मिलेगा आपको. एंड आई बिलीव कि मोर देन कॉन्टेंट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको इस इंडस्ट्री के लिए वैसे रेडी करेगा. एंड आई हैड माई ओन जर्नी हियर. आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 5 years. I have worked in films, I have worked in web series, I have done stage shows. So I understand the importance of confidence, how important it is. And this show will definitely, this event will definitely help the contestants to, connect with themselves, get more confident. And because Saffron, उनकी standing 30 years से भी ज़्यादा रही है इस industry में. So if you win this title, you're not just going to get a film, but I'm sure a lot of career opportunities will also open for you. So I'm very happy and very excited to also host this event. Thank you. So, namaskar and good evening to all of you. My name is Dr. Nivedita Shreyans. I'm the Director Public Relation for Pillai Group of Institution. आप सब लोग शायद आए भी होंगे, मिले भी होंगे. And मैं from the field of education हूँ और नवी मुंबई में लास्ट 22 साल से रह रही हूँ. और मैंने बहुत सालों पहले करीबन 2000 में एक खूबसूरत मिस नवी मुंबई पैजेंट किया था. तो तभी मैंने जब पहली बार इवेंट नवी मुंबई में किया तो मुझे तभी पता चला कि इट इज़ सो पेनफुल टू ऑर्गेनाइज अ इवेंट लाइक दैट. इट इज़ नॉट ईजी. इट इज़ अ बिग चैलेंज. एज अ ऑर्गेनाइजर यू नीड टू रेज द फंड्स, यू नीड टू गेट द कॉन्टेस्टेंट्स, यू नीड टू गेट ऑडियंस, यू नीड टू गेट वेन्यूज. इतनी सारी तैयारियाँ, इतनी सारी हार्डवर्क एक ऑर्गेनाइज़र को करनी पड़ती है कि बता नहीं सकते. बट ये पॉसिबल तभी है जब आप में एक पैशन हो,
कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं। तो वो जो पैशन है, जो कुछ लोगों के लिए करना है, वो मैंने विजय जी में देखा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब मिस नवी मुंबई किया उसके बाद में मैंने एक इवेंट के बाद में हाथ जोड़ दिए कि ये मेरे बस का बात नहीं, मैं करूँगी नहीं। इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी एज अ ऑर्गेनाइज़र एंड आई फोकस्ड ऑन माई कॉलेज। उसके बाद में जब कुछ 6 महीने बाद, इट इज़ मैं 2000 की बात करूँ, मैंने कुछ होर्डिंग्स देखे नवी मुंबई में। तभी नवी मुंबई में होता नहीं था पेजेंट, सैफ्रॉन इवेंट्स एवरीवेयर, यू नो, विद ऑल द ब्यूटी गर्ल्स इन द ग्रुप एंड सारी जगह पे होर्डिंग्स लगी थी सैफ्रॉन इवेंट्स। सभी मैंने देखा, अरे ये बंदा कितना सही है, इवेंट कर रहा है, बट पागल भी है, देन ही विल सफ़र, यू नो, बिकॉज मैं खुद एक सफरिंग से गुजर चुकी थी। बट तभी मुझे पता नहीं था कि मैं ये सैफ्रॉन इवेंट वालों से एक बार मिलूँगी लाइव। तो यू वोंट बिलीव, परसों ही मेरी इनसे बात हो गई। वी आर कनेक्टेड ऑन फेसबुक। आई न्यू हिज कंपनी, ही हैड कम फॉर माई पेजेंट एंड 1 घंटा उन्होंने उनकी सारी स्टोरी बताई कि हाउ ही हेल्प द यूथ टू कम अप इन लाइफ। कितने लोगों का उन्होंने लाइफ चेंज किया है विद दिस कॉन्टेस्ट। ये सिर्फ ब्यूटी ही नहीं है, बट एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यू नो। एंड आजकल के यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सब इंस्टाग्राम रील्स ये वो सब करते हैं, बट एक प्रॉपर ग्रूमिंग ट्रेनिंग जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है वो बहुत बढ़िया होता है। एक कॉन्फिडेंस, लाइक ऑड्री मैडम ने जैसे बोला कि मुझे कभी बात करने को डर लगता था, बट आई गॉट कॉन्फिडेंस। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म दे रहे यूथ के लिए, बड़े एज के लड़कियों महिलाओं के लिए, एक बहुत ही अच्छा काम है। एंड सेकेंडली, वाई आई एम हियर इज, सबसे अच्छी चीज़ ये इवेंट में ये है कि उसमें अंग प्रदर्शन है। यू डोंट हैव टू बी इन स्विम सूट और अ बिकिनी टू बिकम अ ब्यूटी क्वीन। यू सी इट, यू कैन शो इट इन योर कैरेक्टर, you can show it in your personality, you can show it in your attitude and behavior. So ये जो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ये ट्रेनिंग देने वाले हैं, ये हर एक यूथ ने, इंडिया में जितने भी यंग बच्चे हैं या महिला है, शुड गो थ्रू सच ट्रेनिंग कि वो अपने जिस कपड़ों में है कॉन्फिडेंट होके भी ब्यूटीफुल और ब्यूटी क्वीन बन सकती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है विजय जी का। इसी के कारण मैं इससे जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं आजकल जब टीवी देखती हूँ, जब मैं आजकल सब स्टार्स को देखती हूँ, जो यंग यूथ है, यूथ जनरेशन, जो न्यू जनरेशन स्टार्स है, द वे दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ टू द यंग जनरेशन इज़ एक्चुअली टेकिंग इंडिया इन अ वेरी रॉन्ग वे, यू नो, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ। सो ऐसे पेजेंट्स जब आप लोगों के सामने, यूथ के सामने प्रेजेंट करते हो, तो एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट होता है कि दिस इज़ इंडियन कल्चर, ये इंडिया है, इंडियन कल्चर है। इसमें यू नो, यू प्रेजेंट योर क्लोथ्स, यू प्रेजेंट योर टैलेंट एंड यू विन द कॉन्टेस्ट। सो आई थिंक ये आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। विजय जी ने ये जो बीड़ा उठाया है कि हमारे यूथ को हम कैसे प्रोटेक्टेड रखें, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखें, इज़ वॉट आई थिंक सैफ्रॉन इवेंट्स इज़ ऑल अबाउट। एट द सेम टाइम वो वुमेन एम्पावरमेंट की भी लाइन में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये भी एक कारण है कि मैं इससे जुड़ गई हूँ। तो बस यही चाहती हूँ कि इनको अच्छा सपोर्ट मिले, इनको लोगों से अच्छे क्या बोलते हैं, जुड़ने के लिए लोग इनसे मिले और ये इवेंट सक्सेसफुल हो। एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू क्रिएट अ बिग बस फॉर दिस इवेंट विच इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप सब लोगों का साथ, प्यार, आशीर्वाद की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और 2 दिन पहले ही हमने प्रेस डे मनाया, तो उसकी सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे साथ जितने भी यहाँ डिग्नेटरीज है आज, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और आज जिस इवेंट के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है, उसके बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी अब तो मिल ही चुकी है, क्योंकि मुझसे पहले 4 लोग आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं कि इवेंट किस तरह से होने वाले हैं। और ये कोई नवी मुंबई में होने वाला नया इवेंट नहीं कि हमें कुछ ज़्यादा बताना पड़े। मैं बताना ये चाहूँगी कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं यहाँ क्यों हूँ, या किस चीज़ से आकर्षित होकर मैंने यहाँ आना पसंद किया। विजय जी से जब पहली बार बात हुई, जैसे मैम ने बताया कि यहाँ अंग प्रदर्शन नहीं है, सबसे पहले वो बात तो हम लोगों को हमेशा आकर्षित करती है
कि अपनी सुंदरता दिखाने के लिए अंग प्रदर्शन करना चाहिए, ये जो अगर मान्यता है तो ये मान्यता कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच नहीं है। और अंग प्रदर्शन के सिवा भी आपके मन की सुंदरता, आपके दिमाग की सुंदरता, आपके विचारों की सुंदरता, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि तन की सुंदरता कभी ना कभी वो ढल जाएगी, 5-10 साल में आप वो ढल जाती है। लेकिन जो मन की सुंदरता है वो आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे वो निखरने लगती है। और अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने और एक जो क्राइटेरिया रखा है कि 60 साल तक महिलाओं के लिए उन्होंने यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया है। अधिकतर महिलाएं 45-48 साल में जब पहुँचती है तो उन्हें लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं थोड़ा सा सारी जिम्मेदारियों से फ्री होके अलग कुछ मेरे लिए करूं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों से थोड़ी वो महिला फ्री होने लगती है। उस एज में हमारे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो अपने अपने करियर में सेटल हो चुके होते हैं, तब महिलाओं को समय मिलता है अपने लिए कुछ अलग करने का। क्योंकि अधिकतर आप अगर 22, 23, 25 साल में शादी करते हो तो पहले 30 साल आपको परिवार को देने में ही आपके गुजर जाते हैं। यहाँ सारी शायद माताएं हैं, उनका भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहती है हमारा परिवार। लेकिन एक समय के बाद जब हमारे बच्चे अपने करियर में बिजी है, अपनी खुद की लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तब हमें एक अकेलापन महसूस होता है और हमें लगता है कि हमारे लिए भी कुछ करना है। और उस एज पे महिला कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अपने आप को लो फील करने लगती कि यार मैंने पूरी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, बस घर परिवार करते करते मेरी ज़िंदगी गुजर गई। किसी और महिलाओं को वो कुछ करते देखती तो उनसे बहुत इंप्रेस होती रहती, क्या इन्होंने तो कितना अच्छा इन्हें चांस मिला कुछ करने का, बस मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये विचार उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। लेकिन इस एज में जब हमें उन्हें प्लेटफॉर्म देना है तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि वो पीरियड होता है अपने आप को एक महिला लो फील करती है तब का, और तब उसमें कॉन्फिडेंस डालना कि अभी भी तुम बहुत सुंदर हो सकता है तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई होंगी, तुम्हारे बालों में सफेदी आ गई होंगी, लेकिन तुम्हारा मन बहुत निखरा है और उस निखरे मन को तुम्हें सबके सामने रखना है। तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित लगा ये जो क्राइटेरिया है 45 to 60 वाला, वो मुझे आकर्षित कर गया। और यूजुअली हम देखते हैं कि अच्छे घर के लोग थोड़ा सा ग्लैमर इंडस्ट्री से या ब्यूटी कॉन्टेस्ट से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो मान्यताएं हैं या जो उन्होंने उसके बारे में देखा है वो उनको ऐसे विचार करने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई इस फील्ड से बच्चों को अपने दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि भाई सबको यहाँ आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल कोई अंग प्रदर्शन करना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ अलग से कुछ ट्रीटमेंट देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत साफ सुथरा एक कॉन्टेस्ट होने वाला है। आपके अंदर जैसे अभी मैडम ने कहा कि कॉन्फिडेंस डालना कभी कभी होता है कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन मैं लोगों के सामने ठीक से अपने आप को पेश नहीं कर पाती हूँ, या मुझ में जो अच्छा है वो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। यहाँ आपको वो मौका मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग ग्रूम करेंगे, आपकी जो खामियां हैं उससे आपको ओवरकम होकर कैसे समाज के सामने आपको अपने आप को रखना है, ये चीज़ें आप सीखोगे। और जीवन में ये चीज़ें, एक कॉन्टेस्ट तो ठीक है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, कोई ना कोई क्राउन जीतेगा, कोई ना कोई क्राउन नहीं भी जीतेगा, लेकिन आपने जो सीखा है वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। तो ज़रूर आप अपने ज़िंदगी को निखारने के लिए इस कंटेस्ट में आइए। हम सारे पत्रकार मित्र जो है वो हमारी लोकशाही का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और हमारा जो मैसेज है वो आपके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाइए, और हम लोग भी अपनी कोशिश करेंगे कि अच्छे लोग, अच्छे मात्रा में लोग इसमें जुड़े, अच्छी संख्या में लोग इसमें जुड़े। और यही मैं आपकी तरफ से भी सहयोग चाहूँगी कि आप जितनी अच्छी तरह से ये मैसेज समाज की तरफ पहुँचाओगे, ज़रूर लोग इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट होंगे, और ये कंटेस्ट कामयाब करने में आप सबका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल। वैसे विजय से हमारी मुलाकात काफ़ी हुई, कहाँ हुई मालूम नहीं है, तो हम लगभग 15 से 11 साल से 20 से 15 से और विजय की जब भी कुछ इवेंट लाते हैं कॉल करते कैसे करें क्या करें, और मैं मुझे रेफरेंस भी देता हूँ। और जैसा कि नाम है इनका विजय, तो जितने भी उन्होंने काम किए उसमें उन्होंने पताका फहराई है। और सेम जैसे हमारे बिग बी जो अमिताभ बच्चन है, विजय करके नाम फेमस है उनका, सेम ये विजय भी वही तरीके से आगे अपने एक्शन से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या हर साल या जैसे कंटिन्यू करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। विजय जो कर रहे हैं वो अच्छा इवेंट करने के बाद में हर साल कंटिन्यूटी इनकी जो हो रही है वो एक तारीफ़ काबिल है।
और अच्छे खासे लोग इनसे जुड़े हैं। हम भी यही समझ के जुड़े हैं कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, हमें जुड़ना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। एक तो आपको मैं करेक्ट कर दूँगा बीना जी कि ये 60 तक नहीं है, 60 प्लस अच्छा या सो सॉरी 60 प्लस है, मेरी समझ में ताकि शायद इसमें क्या अभी क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा पिंच आएगा रहे और दूसरी विनर थी जो फर्स्ट वाला थी वो 63 थी, वाओ 62 थी, That's good. अब जो 64 हो गई, ये 2 साल का गैप है। तो अब ये मैडम 55 तो भी 57 है। सॉरी मैं इनका एज बता रहा हूँ, ऐसे लगते नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। नहीं हम प्राउडली बताते हैं अपनी age को, हमें उसमें सम्मान लगता है। राइट, तो ये है एक्चुअली बहुत कुछ है इसमें कि खाली ये कॉन्टेस्ट